Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our first chapter and the topic name is natural resources and their conservation. By the end of this lesson, we will be able to explain the different types of natural resources, identify the power resources in Pakistan and explain different minerals found in our country. Dear students, do you have any idea what natural resources are? There are some of the pictures on your screen you can see. Can you identify which one is the natural resource? Natural resources are the things that are given by Allah Almighty to us as a blessing. As water, as nature, these are the natural resources. Pakistan uses much less energy than many other countries. For example, we use 80 times less energy than the United States. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its need. वो कह रहा है कि पाकिस्तान में एनर्जीज जो हैं वो दूसरे मुल्कों की निस्बत हम कम इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास उनके सोर्सेज भी कम हैं। अमेरिका के मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स मीन अमेरिका, इसके मुकाबले में हम 80 टाइम्स कम एनर्जी यूज करते हैं। The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. Minor energy sources include nuclear, LPG, liquefied petroleum gas, बायोगैस, विंड, सोलर एनर्जी एंड पेट्रोलियम। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जो एनर्जी हम जहाँ से लेते हैं, उनमें ऑयल, गैस, वाटर और कोयल शामिल हैं। इसके अलावा एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस है जो हम लोग आजकल गाड़ियों में यूज करते हैं। न्यूक्लियर से, बायोगैस से, विंड हवा से और सोलर एनर्जी या पेट्रोलियम से भी हम एनर्जी यूज करते हैं। In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas. 1961 में Oil and Gas Development Corporation पाकिस्तान में बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि उन सोर्सेज को डिस्कवर किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, डेवलप किया जाए जो ऑयल और गैस की सेल में इम्पोर्टेंट है। Petroleum is made from oil which is found deep below the surface of the earth. Pakistan does not have enough oil for its need. In 2005 and 6, the oil output was nearly 24.7 million barrels. But we need much more than this. A huge quantity is imported every year. पेट्रोलियम एक तेल है, इज मेड फ्रॉम ऑयल विच इज फाउंड डीप बिलो, जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जरूरत के लिए ऑयल मौजूद नहीं है। हमारा जो ऑयल का आउटपुट 2005 और 6 में था वो 24.7 मिलियन बैरल्स था, लेकिन हमारी जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ऑयल हर साल दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइनरीज। In 1951, the first oil field was discovered at Khor. Since then, a number of oil wells have been drilled in this region. Khor is the name of a place, और वहाँ पर सबसे पहले 1951 में oil field discover हुआ था. Before it can be used, oil has to be refined or made pure. इसको use करने से पहले उस oil को हम refine करते हैं, उसको साफ करते हैं. This is done at a refinery, और ये सारा काम एक refinery पे होता है. There are several refineries in Pakistan. The Attak refinery at Morga, Rawalpindi is the oldest. रावलपिंडी में मोरगा के मकाम पे जो अटक रिफाइनरी है वो सबसे पुरानी है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर नेचुरल रिसोर्स दैट इज नेचुरल गैस। Pakistan is very fortunate to have large reservoirs of natural gas. The search for oil resulted in the discovery of gas in 1952 at Sui, Balochistan. पाकिस्तानियों ने 1952 में सुई के मुकाम पे गैस दरियाफ्त की। Sui is the name of an area in our province Balochistan. Since then, several gas fields have been found. उसके बाद बहुत से गैस fields डिस्कवर किए गए। The largest gas field is at Sui, जिनमें सबसे बड़ा गैस का फील्ड सुई के मुकाम पे है। After water, natural gas is Pakistan's second most important source of energy. Natural gas पानी के बाद दूसरा अहम जरिया है. It is very important that we value these natural resources and use them carefully. We should not waste water through leaks or by leaving taps dripping, nor wastage gas by leaving the burners on. Gas leaks can also be very dangerous as they can be fatal and can cause fire. हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर नेचुरल गैस जैसी मादनियात डिस्कवर हुई, लेकिन हमें इसको संभाल के रखना और इसको एहतियात से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हमें ना तो ऐसे पाइप्स यूज करने चाहिए जो लीक हों, जिनसे पानी ड्रिप करता हो, ना हमें अपने टैप ड्रिपिंग के लिए छोड़ देने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम खाना बना लें तो अपने बर्नर्स को बंद कर दें ताकि गैस जाया ना हो। इसके अलावा अगर वो गैस खुली रह जाए तो वो हमारी जिंदगियों के लिए भी खतरा है, क्योंकि उससे आग भी लग सकती है। एक और रिसोर्स दैट इज कॉल्ड electricity. Though it's not natural, it's produced. There is electricity in all our cities,
towns, and about 60% of our villages. The highest use of electricity is in the Punjab. Balochistan uses very little. Can you give some reason for this? Electricity आपको पता है हमारे गाँव में, शहरों में almost 60% गाँव में मौजूद है और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो पंजाब में है, लेकिन सबसे कम बलूचिस्तान में। इसकी क्या रीजन हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन 3 ways: थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी 3 तरह से पैदा की जाती है: थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर। आपने ये पिक्चर देखी है, इसमें एक न्यूक्लियर पावर पॉइंट लगा हुआ है। ये कराची में है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Our next heading is coal. Coal is found in steams underground in our mines. These seams are very usually less than 1 meter thick, which makes mining very difficult. Coal mining in this region started in 1887. In Pakistan, coal is mined in the salt range around Quetta and in the lower Sindh, from where it is transported by rail to wherever it is needed. कोयल हमारी जमीन में काफी अंदर पाया जाता है एंड इन आवर माइंस ये इतना 1 मीटर से ज्यादा इसकी थिक लेयर्स हैं जो जमीन के नीचे हैं। हमारे इलाके में यानी पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में 1887 में इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी। कोयल साल्ट रेंज जो कि कोयटा के नजदीक है, वहाँ पर भी उसकी माइनिंग होती है और इसके अलावा लोअर सिंध में भी होती है, जहाँ से रेल के जरिए इसको जहाँ भी जरूरत होती है लेके जाया जाता है। 50% of Pakistan's coal is in the lower Sindh coal fields. पाकिस्तान कोयल का 50% coal हमें lower Sindh के coal field से मिलता है। Very large coal reservoirs have been discovered in Thar that have yet to be exploited. Pakistan has coal reservoirs of about 185 billion tons. In 2005 and 6, about 3.9 billion tons were mined. The coal found here is of low quality and it does not have a lot of carbon to make it burn well. Pakistan's coal contain a lot of sulfur and produces a lot of ash and smoke. It is used mainly in brick kilns. जैसे कि आपको भी बताया कि 50% जो हमारा कोयल है वो लोअर सिंध कोयल फील्ड में होता है और हमारे बहुत ज्यादा डिस्कवर हुए हैं कोयल रिजर्वर्स, लेकिन अभी तक उनसे काम लेना स्टार्ट नहीं हुआ। It is yet to be exploited. पाकिस्तान में 185 बिलियन टन के रिजर्वर्स हैं और 2005-6 में 3.9 मिलियन टन मजीद माइन किए गए। दो कि यहाँ पे जो कोयल हमें मिला वो थोड़ा लो क्वालिटी का है क्योंकि उसमें कार्बन इतना अच्छा नहीं है जो ज्यादा अच्छे से जला सके। पाकिस्तान के कोयल में सल्फर भी मौजूद है जो बहुत ज्यादा धुआं और राख पैदा करता है। इस वजह से ये ज्यादातर ईंटें बनाने के लिए यूज किया जाता है। अदर सोर्सेज ऑफ पावर, इसके अलावा और भी बहुत से जरिए हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है सोलर एनर्जी। आपने आजकल सुना होगा सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स के बारे में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन पाकिस्तान. There is a lot of sunshine. It should be possible for us to develop many more solar energy units as the source of this energy is available free and in abundant quantity. However, the cost of generation of solar electricity is expensive and it is still at an experimental stage. सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए हम सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इतनी ज्यादा सूरज की रोशनी दिन में पड़ती है, हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उससे अपने यूनिट्स बना सकें और इससे हमारी बिजली ऑलमोस्ट फ्री भी हो सकती है। सिर्फ इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो सोलर पैनल यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को उसके प्लांट बनाने के लिए जो एक्सपेंस आता है वो एक्सपेंसिव है। इस वजह से इट इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। सोलर एनर्जी के अलावा विंड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. The coastal areas and open plains have a lot of wind. Windmills have been set up in selected areas to generate power, but this process is also still in its early stages. हमारे मैदानी इलाकों में हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर विंड मिल्स लगाई गई हैं ताकि बिजली पैदा की जा सके। ताहम अभी तक हमारे मुल्क में ये बिजली पैदा करने का ये तरीका अभी अपनी इब्तदाई मराहल में है। In Pakistan there are rich deposits of non-metallic minerals, but there are very few metallic minerals. Minerals are not so hard to be found, but are sometimes difficult to exploit because they have to be mined. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनी दौलत से मालामाल किया है। हमारे पास नॉन मेटलिक के रिच बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, जबकि मेटलिक मिनरल्स के डिपॉजिट्स कम हैं। मिनरल्स को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, उनका जमीन से माइन करना ज्यादा प्रोसेसिंग का काम है। फिर उनकी रिफाइनिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से अभी तक हम इसमें खुद को फील नहीं हो सके। इन 1974 द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 74 में पाकिस्तान गवर्नमेंट
फार्मर ने मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। In 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan Limited was established to find gemstones and set up an industry. उसके बाद 1979 में Gemstone Corporation of Pakistan Limited, जो कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री थी, वो इस्टेब्लिश की गई, जिन्होंने जेमस्टोन को ढूंढने में और उनको सेटअप करने में मदद की। अब आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स पर। द फर्स्ट वन इज जिप्सम। जिप्सम इज फाउंड इन द सॉल्ट रेंज। इट इज मोस्टली माइंड एट ख्योड़ा, डैंडोट एंड दादुखेल। जिप्सम इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेपर, पेंट्स, रबर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम साल्ट रेंज में पाया जाता है। इसकी माइनिंग ख्योड़ा में, डांडोत में, दादुखेल में होती है। जिप्सम से हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, सीमेंट बनने में इस्तेमाल होता है, पेपर, पेंट्स, रबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। बैराइट। बैराइट इज फाउंड नियर खुजदार इन बलोचिस्तान एंड एट कुंडी, बुखारी, खोला एंड फकीर मोहम्मद। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ऑयल इंडस्ट्री वेयर इट इज मिक्स्ड विद क्ले टू कंट्रोल द ऑयल प्रेशर in wells. It is also used in making paints, glass and insecticides. बेराइट का जो सबसे बड़ा रिजर्वर है वो खुजदार बलोचिस्तान में है। इसके अलावा कुंडी, वखारी, खोला और फकीर मोहम्मद में भी इसके बहुत से रिजर्वर्स पाए गए हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन ऑयल इंडस्ट्री। ये ऑयल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहाँ पे इसको मिट्टी के साथ मिक्स करके ऑयल के प्रेशर को कम किया जाता है कुएं से निकालने के लिए। इसके अलावा पेंट्स, ग्लासेस बनाने में या कोई भी इंसेक्ट्स को मारने की जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनके लिए भी बेराइट यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज रॉक साल्ट। Rock salt was first mined in Pakistan in 1872. It occurs in white or pink seams, usually 20 to 25 meters thick. ये पिंक या व्हाइट कलर की सीम्स होती हैं जो कि आमतौर पर 20 से 25 मीटर मोटी तहें होती हैं। It is found mainly in the salt range where it is mined at ख्योड़ा। ये सबसे ज्यादा ख्योड़ा में पाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ी नमक की कान है। मैग्नीसाइट। Magnesite is mined in Spinkan, Balochistan. It is used in the manufacturing of cement, paper, rayon, fertilizers, chemicals and drugs. Magnesite को Spinkan, Balochistan में माइन किया जाता है। It is used to manufacture cement. ये भी सीमेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए एंड ड्रग्स यानी मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोपस्टोन। Soapstone, a variety of talc, is found in Zohab, Safedko and Shirvan. It is used in making soap, ceramics and face powder. Soapstone को साबुन बनाने के लिए, सिरेमिक्स के बर्तन या दूसरी इस्तेमाल की चीजें बनाने के लिए और फेस पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोराइट। Fluorite is found in Kohe Meran and Kohe Dilband. It is used in making steel and glass. It is also used to enamel utensils and in the chemical industry. ये कोहे मेरान और कोहे दिलबंद में पाया जाता है और इसको स्टील और ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे बर्तन भी बनते हैं और ये केमिकल इंडस्ट्री यानी संतों में भी इस्तेमाल होता है। सल्फर। Sulfur is found in Kohe Sultan and Sani. It is used as a raw material for sulfuric acid. Sulfur is also used to make explosive paints, dyes, rayons and fertilizers. सल्फर कोहे सुल्तान और सानी में मिला है और इसको रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज किया जाता है एज अ सल्फ्रिक एसिड। इसके अलावा पेंट के लिए, डाई के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। जेमस्टोन्स। वेरियस काइंड्स ऑफ जेमस्टोन्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। एमरिलेट्स आर फाउंड इन सवात वैली, रूबीज इन हुंजा, एक्वामेराइन, टोपैज एंड टर्मलाइंस इन स्कर्दू एंड टोपैज इज ऑल्सो फाउंड इन मर्दान। ये वो जेमस्टोन्स हैं जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के इलाकों में पाए जाते हैं। मार्बल। Marble is found mainly in Khyber Pakhtunkhwa. It is decorative stone used for buildings. Marble एक decorative stone है, एक पत्थर है जो खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाता है और इसे buildings में इस्तेमाल किया जाता है। It occurs in different colors: white, grey, yellow, brown. इसके different colors होते हैं, white हो सकता है, grey हो सकता है, yellow and brown. Clays such as China clay, fire clay and fuller's earth are used to make jars, pots and vases. और China clay जो कि fire clay मिट्टी के बर्तन और इसके अलावा jars और गुलदान वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फुलर्स अर्थ इज यूज्ड इन द ऑयल ड्रिलिंग, फाउंड्रीज एंड स्टील मिल्स। इसको ऑयल ड्रिलिंग के लिए, फाउंड्रीज के लिए और स्टील मिल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन इज फाउंड मेनली इन द सॉल्ट रेंज, द मार्गला हिल्स, दादुखेल, मंगोपीर और मुरली हिल्स। इट इज द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। ये सीमेंट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास, सोप, पेपर एंड पेंट्स। इसको ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Metallic minerals. The only metallic ore was mined on a large scale is chromite.
मेटालिक मिनरल्स में पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज्यादा कानकुनी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो क्रोमाइट है। इट इज ऑल्सो यूज टू हार्डन स्टील फॉर ब्रिजेस एंड रेलवे कैरेजेस। इसको ब्रिजेस के स्टील को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेलवे कैरेजेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स, इसकी मदद से इंजीनियरिंग के टूल्स बनाए जाते हैं। एंड स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील की चीजें बनाई जाती हैं जैसे कि बर्तन। क्रोमाइट इज माइंड एट द मुस्लिम बाग नियर कोयटा। क्रोमाइट की जो माइनिंग है वो सबसे ज्यादा कोयटा के नजदीक मुस्लिम बाग में होती है। अदर मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान इंक्लूड मैग्नीशियम, एंटीमोनी एंड बॉक्साइट। सम हैव नॉट बीन माइंड येट, इनमें से कुछ की अभी माइनिंग नहीं हुई। व्हाइल अदर्स आर माइंड इन स्मॉल क्वांटिटीज, जबकि इनमें से बाज की बहुत कम मिकदार में माइनिंग हो चुकी है।